Hey students, how are you? I'm Mukesh Kumar Drona, PGT Biology here, and in chapter 5 today we have to discuss about the chapter 6. But before going to chapter 6, already we have finished the chapter 5, principle of inheritance and variations. Also we have studied the patterns of inheritance and their genetical basis. We have studied the Mendel's factor regulating the patterns of inheritance, but the exact nature of these factors and their molecular basis were not clear. In fact, at the time of Mendel, the chemical nature of factors and the rules in regulating the inheritance was not known. Further investigations were carried out in the different laboratories of the world, and now the conclusion was drawn that DNA is the genetical materials. In last chapter we have studied about this. In chapter 6 we are going to know more about the genetical materials, DNA, RNA, their composition, their adjustment, the different models, whatever they are. So there are different two types of nucleic acids. Nucleic acids are the macromolecules present in all living organisms. कोई भी living organisms ऐसा नहीं है जिसमें nucleic acid ना हो. Frederick Michels was the first person to isolate the nucleic acid from the first cell called as nuclein. फ्रेडरिक मिशर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिन एसिड इसको बोला और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था इस चीज़ के लिए. तो न्यूक्लियस सबसे पहले हुआ. फ्रेडरिक मिशर वाज द साइंटिस्ट. एट द हैज़ द as it is an acidic nature, hence Altman called nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड इनको नाम दिया गया. ठीक है, अल्टमान ने इनको न्यूक्लिक एसिड. आगे बढ़ते हैं. There are different two types of nucleic acids found in a living organisms, DNA and RNA. The full form of DNA, deoxyribose nucleic acid, and RNA is ribose nucleic acid. Right? 11th क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं ये चीज़. DNA क्या है, RNA क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सभी कुछ पढ़ चुके हैं. DNA के बारे में करते हैं अपन बात. DNA इज द जेनेटिकल मटेरियल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिकल मटेरियल्स होता है. दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. दिस इज द DNA है मोनोमर. DNA हैज़ अ मोनोमर. मोनोमर्स मीन्स यूनिट. जैसे हमारी बॉडी के अंदर बॉडी की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है, उसी तरह से DNA की भी एक यूनिट है जिसको कहते हैं मोनोमर और नेम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड. सो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर बाय विच DNA आर formed as a long polymer macromolecules, right? The length of DNA depends on the number of nucleotide pairs present in it. मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर्स. फैक्टर एक्चुअली क्या थे? जीन्स. और जीन्स क्या होते हैं? द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, एंड हु आर द रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द जीन्स फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन? क्रोमोसोम्स. सो यूकैरियोटिक सेल्स फाउंड इन न्यूक्लियस, इट इज़ द चीफ कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम, एंड DNA आल्सो फाउंड इन अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. DNA दो टाइप का होता है. फर्स्ट DNA जो न्यूक्लियस में होता है उसे न्यूक्लियर DNA कहते हैं, जेनेटिकल DNA कहते हैं. सेकेंड इज साइटोप्लाज्मिक DNA that is found in eukaryotic cells in a mitochondria and chloroplast. Right? So these are the next. Chemical DNA composed of different three units, different three components exactly: sugar, phosphate group, and nitrogenous bases. Sugar के लिए S वर्ड यूज़ करते हैं, फॉस्फेट के लिए P वर्ड यूज़ करते हैं, और नाइट्रोजन बेसिस के लिए N वर्ड यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम बात करें शुगर की. डीऑक्सीराइबोज शुगर, द शुगर विच हैव 5 कार्बन्स. शुगर के लिए सफिक्स यूज़ किया जाता है ओस, OSE, एंड पेंटा इज द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर द नंबर ऑफ कार्बन्स numbers are here 5. So पेंटा प्लस ओस, पेंटोस. मोलिकुलर फॉर्मूला ये है इसका C5H10O5. दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. दिस हैव फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकेंड नंबर कार्बन, थर्ड नंबर कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर कार्बन.
There are the different five carbons totally found in deoxyribose sugar. That's why it is called pentose sugar, right? Second component is phosphate group that is provided by phosphoric acid and formula H3PO4 that is very responsible for the acidic nature of DNA. यदि DNA acid है, acidic nature है, तो because of what? Because of phosphoric acid that is responsible to provide phosphate group in DNA molecule. One thing more I would like to share with you that DNA is negative charge. DNA is negative charge because of phosphoric acid. Next thing, next piece, nitrogen bases N. There are different two nitrogen bases, purine and pyrimidines. Purines are double ring heterocyclic structures. There are two types, adenine A and guanine G. दोनों डबल रिंग है, देखिए वन रिंग और सेकेंड रिंग, इधर भी वन रिंग और सेकेंड रिंग, ये एडेनिन है और ये ग्वाइनिन है, ठीक है। इसको हेटेरोसाइक्लिक क्यों कहा गया है? बिकॉज द वैलेंसी of the carbon not only filled with hydrogen, it's also filled with nitrogen. Nitrogen के साथ में भी है, that is double ring heterocyclic structures compound. Purine is so and so. Next, pyrimidine. Pyrimidine are the single ring structures compound. There are two types of pyrimidine present in a DNA, cytidine and thymine. cytidine के लिए C शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं, थायमीन के लिए टी शॉर्ट टर्म करते हैं। ये सिंगल रिंग है, देखिए, ठीक है। अब हम बात करें इसकी एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए डीएनए। अभी क्या क्या बात करी अपन ने? कंपोनेंट्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट्स हो गया आपका शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर विच हैव 5 कार्बन्स, पेंटोज शुगर, राइट। अच्छा, एक बात और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर ले अपन। यहाँ पर देखें आप, सॉरी, यहाँ पर आप देखें पेंटोज शुगर की बात कर रहे हैं ना अपन, तो पेंटोज शुगर में आप देखिए, इस जगह देखिए आप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे भी है, बट आप देखिए 2 नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो 2 नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की लैक है, तो इस लैकिंग को क्या कहते हैं? डी वर्ड यूज़ कर लिया, राइट। ऑक्सीजन की कमी हो गई, हाइड्रोजन तो है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस शुगर। 2- हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2-OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन डीऑक्सीराइबोस शुगर, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड बाय डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर को एक नाम से यदि हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइबोस शुगर। लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट द मेन थिंग दिस इज 2-हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। वापस से आ जाए। अब हम बात करें द एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन डीएनए। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड किसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोसाइड में यदि शॉर्ट टर्म की बात करूं, S प्लस शुगर S एंड N। देखिए, देख रहे हैं आप डायग्राम? यहाँ पर देखिए, नंबर 1 कार्बन, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस 1 5। यहाँ पर ये क्या है? नाइट्रोजन बेसिस। कौन सा नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है? फर्स्ट नंबर कार्बन से। तो फर्स्ट नंबर कार्बन से यहाँ पर बॉन्डिंग क्या है? इस बॉन्डिंग को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ध्यान दें यहाँ पर क्या हुआ? कंपाउंड्स फॉर्म द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। मीन्स क्या मतलब हुआ? न्यूक्लियोसाइड बनने के लिए शुगर चाहिए और उसके साथ नाइट्रोजन बेसिस चाहिए। इनके बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है, वो बॉन्डिंग जो बन रही है शुगर और एन के बीच में, एक मिनट, शुगर और एन के बीच में एक बॉन्डिंग बन रही है, दैट बॉन्डिंग कॉल
एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन नंबर्स की बात करें यहाँ पर, तो नंबर्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर कार्बन से इंडिकेट करेंगे ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन डैश ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, राइट। A nitrogen base is attached to the C1 of pentose sugar. This is the C1 of pentose sugar. This is the C1 of pentose sugar. Pentose sugar by the glycosidic linkage or an glycosidic bond. In DNA, nucleosides are formed by the combination of deoxyribose sugar and nitrogen bases. ये deoxyribose sugar हो गया, ये nitrogen bases हो गया, दोनों जुड़ करके क्या बन रहे हैं, nucleosides बना रहे हैं। नेक्स्ट बात करें इस हिसाब से, जब हम नाइट्रोजन बेसिस से डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ जोड़ रहे हैं तो एज वी नो देयर आर डिफरेंट फोर नाइट्रोजन बेसिस वी कैन सी इन डीएनए। ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वाइनोन, सी फॉर साइटोसिन एंड टी फॉर थाइमिन। इस हिसाब से कितने न्यूक्लियोसाइड हो जाएंगे, डिफरेंट फोर, डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन एंड डीऑक्सी थाइमिडीन, डीऑक्सी इस तरह से बन जाता। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बना दिया, न्यूक्लियोसाइड। क्या बाकी रह गया, फॉस्फेट ग्रुप। कहाँ जुड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड के डीऑक्सीराइबोस शुगर के 5th नंबर कार्बन से, और जो 5th नंबर कार्बन से यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड करेगा, वो बॉन्डिंग के हेल्प से जुड़ता है, दैट्स कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, राइट। बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक क्लियर करें अपना, द कंपाउंड्स फॉर्म द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप विद द न्यूक्लियोसाइड एंड कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड का कॉम्बिनेशन फॉस्फेट ग्रुप से हो रहा है। जिस तरह से न्यूक्लियोसाइड्स डिफरेंट 4 टाइप्स के थे, उसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स भी डिफरेंट 4 टाइप्स के बनेंगे। तो यहाँ पर बन गया डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर करके लिखें अपन, थोड़ा सा क्लियरली लिखें। तो डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को हम ऐसे लिखेंगे DAMP। इसकी बात करें DGMP, ये एज इट इज रह जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा, ये एज इट इज रह गया, इसकी जगह G आ जाएगा। उसी तरह डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, D एज इट इज, MP एज इट इज, PB एज इट इज, और उसकी जगह आ जाएगा C। और होगा डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, तो ये हो जाएगा D एज इट इज, M एज इट इज और P एज इट इज, और इसकी जगह आ जाएगा T। इस तरह से डिफरेंट 4 न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा आपको, ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। इसके न्यूक्लियोटाइड के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर ये है, और डीऑक्सीराइबोस शुगर के 1st नंबर कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेसिस, राइट। एडेनोसिन है, आपका ग्वाइनोसिन हो जाएगा, साइटिडीन हो जाएगा, थाइमीन हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हम देखें, इस तरह से देखें अपन, इस हिसाब से देखें तो ये दोनों क्या थे, न्यूक्लियोसाइड, राइट। और यहाँ पर इस डीऑक्सीराइबोस शुगर के 5th नंबर कार्बन पर कौन आके अटैच हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप कौन से बॉन्ड की हेल्प से यहाँ पर जुड़ रहा है, वो जुड़ रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से जुड़ रहा है, जिसको हम बोलेंगे 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनेगा। अब जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स बन गए हैं, डिफरेंट 4 टाइप्स के बने, पर न्यूमरस नंबर्स होंगे ना, वो आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से आपस में जुड़ते चले जाने पर
उनका बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। कैसे जुड़ेगा देखिए, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में देखिए आप, ये तो हमने बना छोड़ा है जिसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, ये भी हमने बना छोड़ा, यहाँ पर है ये आपका न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर हमने जोड़ के रख छोड़ा, ठीक है। अब इन दोनों फर्स्ट और सेकंड न्यूक्लियोटाइड के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग है, इसी तरह सेकंड और थर्ड के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये फास्फोडाइस्टर ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। इस न्यूक्लियोटाइड के कौन सा नंबर कार्बन से? थर्ड नंबर कार्बन से ये 2 नंबर न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। कौन से हेल्प से जुड़ेगा? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड तो यहां पर है, एक न्यूक्लियोटाइड की बात चल रही है ना, तो एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड तो 5 नंबर कार्बन पे होगा और एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 नंबर कार्बन पे हो गया। एक बार क्लियर कर लेते हैं इसको, फिर बताते हैं हम आपको। ये एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड तो एक न्यूक्लियोटाइड में है जो 5' नंबर पे है। दूसरा, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा तो कौन सा नंबर पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके जुड़ेगा? 3' पर। तो ये सीक्वेंस हो गया 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में उनके फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखिए, एक तरफ तो ये 5' के अंदर हो गया और इस तरफ 3' पे एक न्यूक्लियोटाइड में ये बॉन्डिंग हो गई। उसी तरह से यहाँ पर 5' 3', इस तरह से देखा जाए तो इस सीक्वेंस बन गया 5', दिस इज 5', दिस 3', 5', 3', 5', 3'। देखिए अपन, number of nucleotides link each other by the phosphodiester bond and form a long chain of molecule called polynucleotide strand. The phosphodiester bond in between 5' and 3' carbon atom position of pentose sugar. पेंटोज शुगर के 5th नंबर कार्बन पे भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है और 3 नंबर कार्बन पे भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। यह है एक न्यूक्लियोटाइड। इस एक न्यूक्लियोटाइड में कितने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गए? 2, 1 and 2। एक 5 नंबर कार्बन पर, दूसरा 3 नंबर कार्बन पर। The phosphodiester bond form between 5th and 3rd carbon atom position of pentose sugar. Therefore, the polynucleotide strand contains 5', 3', 5', 3', ये 5' और ये 3'। अब हम बात करें all over the model given by Watson and Crick as double helix DNA model. J.D. Watson Crick first proposed the structural model DNA in 1953। DNA 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया इस वर्क के लिए उनको। अकॉर्डिंग वॉटसन एंड क्रिक ऑफ द मॉडल ऑफ DNA, द DNA कंटेन्स 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। DNA में 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होती है। कैसे होती है? एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड तो ये हो गई और दूसरी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऐसे हो गई, तो डबल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हो गई। दोनों डबल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड किससे मिलकर जुड़ी होती है? बॉन्डिंग से जुड़ी होती है। अब तक कौन कौन से बॉन्ड की बात करी अपन ने? सबसे पहला बॉन्ड फर्स्ट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, सेकेंड 5' डायस्टर बॉन्ड, थर्ड 3' डायस्टर बॉन्ड, फोर्थ तो बात ही नहीं करी। दो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वाटसन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हैं, वो कॉइल्ड रहती है। तो कॉइल्ड रहने के लिए उनके बीच में क्या रहना चाहिए? बॉन्डिंग तो रहनी चाहिए। ये जो बॉन्डिंग है उसको कहते हैं H बॉन्डिंग, राइट। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो मॉडल दिया गया वाटसन एंड क्रिक के थ्रू, वो डबल हेलिक्स के फॉर्म में दिया गया था। 19 इस तरह से दिया गया आपका क्रिक और वाटसन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑल ओवर यदि हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए डबल स्ट्रैंड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाती है एंड बेसिस प्रोजेक्ट टू इनसाइड। कैसे होगा देखें एक बार। ये आपने देखी होगी मुड़ी हुई लैडर, सीढ़ी जिसको बोलते हैं ना, वो वाला। इस तरह से देखिए, ये हो गया बैकबोन। ये जो पूरा देख रहे हो आप बैकबोन है, बैकबोन। ये बैकबोन किससे मिलके बना हुआ है? ये बैकबोन बना हुआ है शुगर एंड फॉस्फेट्स, शुगर एंड फॉस्फेट यहाँ होता है।
और बीच बीच में क्या जुड़े रहते हैं, बीच बीच में बॉन्डिंग बनाते हैं। इस स्ट्रैंड का नाइट्रोजन बेसिस उस स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसिस के साथ में क्या बनाता है, बॉन्डिंग। तो इस तरह से क्या हो गया, प्रोजेक्ट्स इनसाइड होते हैं, ये हो गया बैकबोन और बीच में हो गया इनका प्रोजेक्ट्स। सो शुगर एंड फॉस्फेट्स फॉर्म्स द बैकबोन, द बेसिस प्रोजेक्ट टू इनसाइड, द टू स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड ईच अदर अरेंज एंटी पैरेलली। अब एंटी पैरेलली क्यों बोला, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये एक स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं अपन, तो इस स्ट्रैंड के अंदर ये स्टडी होगी। सपोज एक बार इमेज कीजिए आप, ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड हो गए, एक स्ट्रैंड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, वो न्यूक्लियोटाइड का ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसका फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया 5', ठीक है, और इसकी इसी स्ट्रैंड के लास्ट एंड पर जो फास्फोडाइस्टर सीक्वेंस है वो 3'। जब दो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आपस में जुड़ती है डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल बनाने के लिए, तो उनके डायस्टर बॉन्ड्स, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कभी भी सेम सीक्वेंस वाले नहीं आएंगे, इस तरह से आएंगे। एक यदि स्ट्रैंड सीधी है तो दूसरी जस्ट अपोजिट सीक्वेंस वाली होगी। इसको एंटी पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स कहते हैं, ठीक है। टू स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड टू अरेंज द एंटी पैरेलल, मीन्स वन स्ट्रैंड एट 5' to 3', मतलब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स का सीक्वेंस, तो दूसरे में 3' to 5' डायरेक्शन। दोनों स्ट्रैंड के बीच में द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैव अ कॉमन डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम। दो डीएनए मॉडल की बात कर रहे हैं अपन वाटसन क्रिक के अकॉर्डिंग, तो एक डीएनए मॉडल का ये रेडियस होता है, डायमीटर होता है, सॉरी, ये डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यदि आप नैनोमीटर की बात करेंगे तो ये नैनोमीटर हो जाएगा आपका, नैनोमीटर की बात कर रहे हैं तो इस हिसाब से 10 to power -1 हो जाता है, मीन्स एक्चुअली ये हो जाएगा 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर। नैनोमीटर की बात अलग हो गई। और इस तरह से एडेनिन ऑफ टू स्ट्रैंड्स आर पेयर विद द थायमिन, अनदर इज द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाइस वर्सा। कैसे है, एक सीक्वेंस में सपोज कीजिए यहाँ पर एडेनिन है और दूसरी चेन के अंदर सामने यदि कोई न्यूक्लियोटाइड होता है, तो उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कब होगी, जब कब जुड़ेंगे, जब एक स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का एडेनिन वाला नाइट्रोजन बेसिस जस्ट अपोजिट एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसिस के सामने आएगा। यदि थायमिन होगा तो वो बॉन्डिंग बनाएगा डबल, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ग्वाइनिन और अपोजिट साइटोसिन के बीच में ट्रिपल वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैव द कॉमन डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। Adenine of one strand pair with the thymine and another strand of 2 hydrogen and the vice versa. Guanine of one strand pairs to the cytosine and another strand the 3 hydrogen bond with vice versa. तो एडेनिन के साथ क्या जुड़ रहा है, थायमिन, वाइस वर्सा, थायमिन और एडेनिन जुड़ रहा है, राइट। ग्वानिन के साथ में साइटोसिन जुड़ रहा है, वाइस वर्सा, साइटोसिन के साथ में ग्वानिन जुड़ रहा है। इस तरह से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसिस का बॉन्डिंग दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसिस के साथ में, यदि एडेनिन थायमिन है तो डबल बॉन्ड की हेल्प से, और ग्वानिन साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं। Because of complementary base pairing arrangement, if one strand of polynucleotide sequence is known and another can be detected, यदि हमें किसी भी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का सीक्वेंस मालूम चल जाए नाइट्रोजन बेसिस का, तो हम उसके एंटी पैरेलल जो दूसरा नाइट्रोजन बेसिस दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है उसकी सीक्वेंस को पता कर सकते हैं, बिकॉज बोथ एंटी पैरेलल डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री होते। यदि एक नाइट्रोजन बेसिस
यदि एक नाइट्रोजनी बेसिस के यदि एक पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के अंदर एडेनिन आ रहा है तो जस्ट अपोजिट उस स्ट्रैंड थायमीन आएगा। तो इस तरह से आप प्रिटेंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं आप कि एक पर्टिकुलर डीएनए के सीक्वेंस आपको नाइट्रोजन बेसिस का पता चल जाए, न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिस का पता चल जाए, तो बेसिकली आप उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड ट्विस्टेड इन ईच अदर टू द डिस्टेंस ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम। कैसे? देखिए मैंने क्या बताया आपको, ये डीएनए सीक्वेंस, ये डीएनए स्ट्रैंड हो गया, इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम, ये पूरा एक लूप हो गया। इस एक लूप में टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड्स। 10 न्यूक्लियोटाइड्स मीन 10 बेस पेयर्स, और इन 10 बेस पेयर्स को हम वन लूप कहते हैं, और वन लूप की जो लेंथ होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर के बीच में डिफरेंस है। एंगस्ट्रॉम को आप नैनोमीटर में डिस्क्राइब करेंगे ना, तो एंगस्ट्रॉम को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 टू पावर -1 से, तो इस हिसाब से 20 एंगस्ट्रॉम यदि इसके डायमीटर है तो नैनोमीटर में 2 नैनोमीटर हो गया। यदि वन लूप की लंबाई लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम है तो नैनोमीटर में होगी 3.4 नैनोमीटर। राइट, आगे बढ़ते हैं। ईच ट्विस्टेड डीएनए कंटेन 10 बेस पेयर्स। एक लूप के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर, यानी टोटल 20 हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स आर 3.4 एंगस्ट्रॉम। वापस से देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, ये देखिए, ये एक नाइट्रोजन, ये डीएनए सीक्वेंस हो गया, डीएनए सीक्वेंस। इसमें सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक नाइट्रोजनी बेसिस है N, और यहाँ पर एक नाइट्रोजनी बेसिस है, तो इन नाइट्रोजनी बेसिस के बीच के जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम को जब आप नैनोमीटर में डिस्क्राइब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो दोनों ही द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स आर 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये है हमारे डीएनए का मॉडल, डबल हेलिक्स वाटसन क्रिक डीएनए मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी आ रही है, मैंने बताया एंगस्ट्रॉम्स में, और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो नैनोमीटर में। ये 2 नैनोमीटर हो गया, ये वन लूप की लंबाई 3.4 नैनोमीटर हो गई, नाइट्रोजन बेसिस के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर हो गया। एक लूप में टोटल कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड दूसरी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बिल्कुल जस्ट एंटी पैरेलल होती है। देखिए, एक में सीक्वेंस है 5'3" का, दूसरे में सीक्वेंस क्या है? 3'5' का। ठीक है, अब आगे बात करें अपन, ये 3 डायमेंशनल इसका है। बैकबोन की बात करी थी अपन ने, तो बैकबोन के अंदर आप देखिए ये वाला हिस्सा बैकबोन है, देख रहे हो आप, इस तरह से बैकबोन, ये बैकबोन है। ये शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप का मिलके बना होता है। जबकि हम बात करें इसके स्टेप्स की, बीच वाले हिस्से की, ये जो स्टेप्स हैं वो बने होते हैं नाइट्रोजन बेसिस। देख रहे हैं आप, साइटोसिन के साथ में ग्वानिन और ग्वानिन के साथ में से। ध्यान रखना, दोनों ही मतलब एक डीएनए के अंदर जो डबल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं वो दोनों आपस में एंटी पैरेलली अरेंज रहते हैं, और एंटी पैरेलली अरेंज रहते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, यानी कि 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, एंटी पैरेलल पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड किससे बाइंड रहती है? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से। और ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड किन के बीच में बनते हैं? नाइट्रोजनी बेसिस के, यानी एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड, थायमिन एडेनिन के साथ भी डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड, और वाइस वर्सा साइटोसिन ग्वानिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड करते हुए इस तरह से सिंगल 2 डी ऑक्सी राइबो डी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सॉरी
two single polynucleotide strand bind together with weak hydrogen bonds which are present between the nitrogen bases adenine, thymine, one in cytosine.